Having one of the best performing balance sheets in the Indian banking industry, Citi is among the top foreign banks of India. And our guest for today is among the few who got selected for the management trainee role at this bank. So, hello, namaste, assalamu alaikum, kem cho, kedo wala hai, sat sri akal. Welcome to another episode of the series Ab Aur Kya. So, Charmi ko to aap sab jaan hi chuke hain. She just did a video with me on the topic of international taxation, जहाँ पे इन्होंने काफी अच्छे से लाइवली तरीके से गाइड किया सबको कि कैसे इंटरनेशनल टैक्स एज एन इलेक्टिव को हैंडल करना चाहिए. और आज ये शेयर करेंगी अपना एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सिटी बैंक. सो चार्मी, वेलकम टू द शो. Thanks, Shubham. Thanks for the introduction. It was great recording the earlier video with you. And interview process with Citi Bank has always been very special and very close to me. And I think बड़ा मजा आएगा इस वीडियो में भी. एंड आई होप कि जैसे उस वीडियो में काफी कुछ आपसे सीखने को मिला था, इस वीडियो में भी हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे आफ्टर दिस वीडियो एंड्स. सो बिफोर स्टार्टिंग विद एनीथिंग, व्हाट वाज योर रैंक इन सीए फाइनल्स? एंड जब वो रैंक मिली उसके बाद व्हाट वाज योर थिंकिंग आउटलुक कि भाई अब क्या करना है, रैंक आ गई है, इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में. हाउ डिड यू एक्चुअली प्रोसीड विद दैट? So I secured All India rank 13, and it was overwhelming for everyone. After securing the rank, the first thing is to celebrate. You should definitely do it. But after that, you need to get things in place. आपको आपके seniors से बात करनी है जिनके पहले ranks आई है, सारी top companies के profiles जानने हैं, उनके लिए क्या चीजें तैयारी करनी है वो जाननी है. न्यूज़पेपर्स कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना है, बिकॉज उससे काफी हेल्प होती है इंटरव्यू में, प्लस आप अपडेटेड भी रहते हैं. तो ये मेरी तैयारी थी, धीरे धीरे लोगों से बात करना, उनका प्रोफाइल समझना और व्हाट इट एक्चुअली टेक्स टू गेटिंग दोस कंपनीज, वो एक बार अंडरस्टैंड कर लेना वेरी हाई लेवल. उसको डिटेल में इतना जाने की जरूरत नहीं है, बट वेरी हाई लेवल सो दैट यू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ इट. तो वो मेरी तैयारी थी कि मैं डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा अपने पे वर्कआउट करूँ, क्योंकि अब पढ़ाई का तो फेज खत्म हुआ. If you are entering into professional stint, तो अपने skills पे भी थोड़ा मेहनत करना है, तो वही चीज थी. Great. So जब rank आ गई and then you started preparation for this, I have heard कि ICI also organizes management development program for the CA final rankers. So right. Did that play any role in your selection process and basically making you all prepared for those interviews and placements? Definitely, IIM Indore was our go-to thing for MDP, and it plays a key role in help you grow, and you are sharing the experience with so many freshly qualified rankers, so you can prepare together, exchange knowledge, just buzz around the current affairs, plus the sessions which were held there. It definitely helps you to make your personality game strong. How do you present yourself? Technically, you've proven yourself, but now how do you actually communicate? So I think it plays a great role. And जो exchanges रहती है अपने दोस्तों के साथ, वो चीजें जो criticize करते हैं या तुम्हें एक better इंसान बनाने की try करते हैं in a very short time, तो वो काफी help हुआ. Yeah, so I think MDP actually played a good role for all those who attended it, and काफी ज़्यादा अच्छी networking हो जाती है. You get a broader perspective to each and every aspect which you look up to as a person, and overall it's the experience that actually matters, and the learnings out of that which play a great role in magnifying your outlook and the way you actually perceive the things. And Shubh, I think healthy competition always makes the best of you. Agree. So the atmosphere there and how everyone is so inclined, so fresh. So I mean the ideas are so fresh. So it helps you to get the best version of yourself out there. Definitely. And वो जो best version आया, it helped you grab one of the best offers that was available in the market, that is of the management trainee role at Citi Bank. So before we actually understand what the profile is all about and how is the job actually when you go for it, let me just understand कि कैसे हुआ ये सब कि आपने खुद apply किया था, you applied on your own, you applied through a portal, you got a call from one of the agencies. How was it? Yeah, so I got a call from one of the agencies. Okay. And they were looking for a fresher ranker, specifically rank was the criteria.
And that's how I got introduced to this role. They asked me to share my resume, and thereafter I got a call for the interview. So it was through one of the third-party HR agencies. So जब कॉल आया, उन्होंने बोला कि इस तरह से एक बैंक है एंड आपको एक रोल ऑफर हो रहा है. So what was your outlook at that point of time? कि मतलब एक तो अच्छा लगता है कि ठीक है कॉल आया है मेरे पास ऑफर, मतलब कैसे उस चीज को आपने टेकअप किया at that point of time? Yeah, so जब कॉल आया तब since we were all very new to this, so I said yes. And my elder sister is always a chartered accountant, and she's always been my mentor and guide throughout the journey. So whenever something comes up and if we get excited, I just give her a call. So मुझे वहाँ आए इंदौर में ये चीज के लिए कॉल आया था. So I just spoke with her and gave my consent for the interview. So that's how I planned that. जो भी opportunities आ रही है वो लेवल पे नो नहीं करना है. कुछ और भी फैक्टर्स नहीं टेस्ट करने हैं वो टाइम पे. जो भी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें टैप हो रही है, जहां भी तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, एटलीस्ट फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस यू शुड ऑलवेज से यस एंड गेट द इंटरव्यू शेड्यूल. तो सिस्टर से बातचीत करने के बाद एंड या इट वाज अ वेरी क्लियर यस फ्रॉम माय साइड दैट इंटरव्यू तो देना ही है. सो अब ये कॉल आई और इंटरव्यू हुआ. सो इसके बीच में डेफिनेटली कुछ टाइम रहा होगा. व्हाट डिड यू डू इन दैट टाइम एंड फाइनली जब इंटरव्यू हुआ, द इंटरव्यू डे, व्हाट हैपेंड दैट डे? राइट. तो अब जैसे पता चल गया था, जैसे ही मैंने रेज्यूमे शेयर करा था, पता चल गया था दैट मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है. मुझे कॉल आ गया था दैट यस योर प्रोफाइल हैज बीन शॉर्टलिस्टेड. तो कहीं ना कहीं दिमाग में था दैट चलो अब इंटरव्यू शेड्यूल हो गई है. तो वही दिन से जैसे ही तुम्हें वो थ्रिल रहती है कि अब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल है, तो वही दिन से मैं डेली बेसिस पे, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है एंड राइट नाउ वो बजट 2021 में काफी स्ट्रेस था ये चीज पे, प्राइवेटाइजेशन पे, वो रिकंस्ट्रक्शन पे. तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करी थी, शायद टेस्ट हो जाए. तो फाइनेंशियल सेक्टर के करंट अफेयर्स, जबकि तभी वो बहुत ही ज्यादा उसका बात चल रहा था इंडस्ट्री में, तो उसके लिए काफी मेहनत की, काफी डिटेल में जाके सारी अंडरस्टैंडिंग करी. देन कंपनी सिटी बैंक क्या रोल प्ले करता है, उसके क्या क्या डिविजन्स है, एंड हाउ इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एज सच अ कवेटेड बैंक इन इंडिया. उस चीज के बारे में भी मैंने अंडरस्टैंड किया कि कैसे चीजें वहां होती है, क्या क्या उनके सेक्टर्स है, कौन सी बड़ी डील्स है जो उन्होंने क्रैक करी है, और उनकी वेबसाइट से जो भी इंफॉर्मेशन मुझे लगी कि इंटरव्यू में काम आ सकती है वो मैंने काफी ध्यान रखी थी. प्लस जैसे मैंने पहले मेंशन करा, डेली रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स आल्सो हेल्प अ लॉट. तो ऐसे कंपनी रिसर्च पे मैंने फोकस किया. साथ ही साथ आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग ऑन हाउ माय पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस वुड बी. तो जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं पब्लिक डोमेन में, और चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हें इसमें हेल्प कर सकते हैं, उसमें भी वो चीजें तुम कैसे आंसर करोगे, as simple as walk through your profile or as simple as your strengths and weaknesses. वो भी मुझे ऐसा लगता है कि एक पेन पेपर लेके एक बारी प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले लिखना है. दैट हेल्प्स अ लॉट. तो 2 पार्ट में मैंने किया था. एक तो कंपनी के रिलेटेड पूरा, प्लस इंडस्ट्री कवर वहां पे हो जाते हैं, और सेकंड मैंने अपने पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर करा था. So ठीक है, ये तो गई एक्सटर्नल प्रिपरेशन, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आफ्टर योर सीए फाइनल एग्जाम्स. When you got the interview call and before the interview, जो हमने extra preparations करी just to make sure कि वो interview ठीक जाए. So this was the extra part that we did. इससे पहले if I talk about, ठीक है CA finals clear कर लिया, तो of course art subject की एक अच्छी knowledge है. What has been your practical experience like? Articleship किस field में थी, अगर उसकी बात करें तो? Right. So my articleship was from KPMG India in the Corporate and International Taxation Department, and I was fortunate enough to get a chance to work in all 3 domains of taxes, advisory, compliance and litigation. तो KPMG में बहुत ही खास रहा एक्सपीरियंस. तो वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सारे की असाइनमेंट्स नोट कर लीजिए. वो तो आप वैसे भी अपने रेज्यूमे प्रिपरेशन में करते ही हो, बट नोट करने की साथ ही साथ आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको. एक वो पर्सपेक्टिव भी काफी काम आता है. एग्रीड. सो हमारे पास अब बेसिकली 3 सोर्सेज ऑफ लर्निंग है. एक तो आर्टिकलशिप का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो कि अब हमें हेल्प करने वाले इंटरव्यू एस करने में. देन हमारी सीए फाइनल की प्रिपरेशन जो हमने वो सब्जेक्ट्स के लिए, आर्ट सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई की. एंड देन हमने कुछ एक्सटर्नल प्रिपरेशन भी कर ली जस्ट टू फिल इन दैट गैप कि अगर कोई फाइनेंस से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स वगैरह आ जाते हैं, या कंपनी के बारे में कोई हमसे पूछ ले कि आप इस कंपनी का पार्ट बनना चाहते हो, आपको कंपनी के बारे में पता है या नहीं पता, तो वो भी हमें पता होना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए we even studied and researched about the company, its products, कैसे कंपनी फंक्शन कर रही है एंड ऑल.
ठीक है, तो आई थिंक हमारी तैयारी तो पूरी जीत की हो गई है। तो डी डे व्हेन द इंटरव्यू एक्चुअली हैपेंड, वाज इट अ सिंगल राउंड जीडी हुआ, कैसा था वो? तो दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो उसके पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, नथिंग। दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, तो काफी एक्साइटमेंट नर्वसनेस तो थी ही। एंड या देयर वाज अ सिंगल राउंड, एक ही राउंड था जिसमें एचआर के भी पर्सन थे और टेक्निकल भी पर्सन थे। एंड इंटरव्यू कुछ करीब 40 मिनट्स चला, जिसमें उन्होंने सारे डोमेन्स टेस्ट करे थे, जो भी उन्हें ये रोल के लिए उन्होंने अपने बारे में सोच के रखा था कि ये पॉइंट्स हम ये रोल में देखना चाहते हैं। तो 40 मिनट्स के इंटरव्यू राउंड में उन्होंने वो सारी चीजें टैग करी थी। ओके, ग्रेट। सो अब आते हैं 40 मिनट्स एचआर और टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछे। तो ये तो हम सबसे सुनते हैं कि यार बेसिक एचआर क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये तो हर जगह ही होते हैं। करेक्ट। हाउ डिड यू एक्चुअली वेंट थ्रू दोस 40 मिनट्स? कैसे निकले वो 40 मिनट्स? एक बार if you could walk through us through them. Sure. So first 15 minutes is like getting to know. वो हमें रोल के बारे में बताएंगे, हमें अपने बारे में बताना है। तो एक चीज मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहूंगी, दैट वो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और सभी बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा दैट काइंडली वॉक थ्रू योर प्रोफाइल, तो आई वाज वेरी क्लियर दैट मुझे उसे बहुत ही क्लियर तरीके से आंसर करना है, so that I am, explaining them where I stand and where I have come from. So I started with saying I would like you to walk through my profile into two parts, one being my academics and work, and the latter being my extracurriculars and interests. तो अपने मैंने चीजें एक्सप्लेन की, एंड दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट दैट ये इतना सिस्टमैटिक था। तो जैसे ही मेरा वो 12 मिनट खत्म हुआ, मुझे वहाँ एक कॉम्प्लीमेंट आ गई थी दैट दिस इज अ रियली नाइस वे एंड इट हेल्प्ड अस बेटर टू अंडरस्टैंड वेयर यू कम फ्रॉम। So this is my bit of it, that वो first 12 minutes personal interview की इस तरह मैंने टैकल करी थी। Start किया। So I think as a student, as a CA student, like have you done college and as you talked about extracurricular activities, so किस तरह की extracurricular activities करने का मौका मिला? Because students की तो generally यही complaint रहती है, यार कोचिंग्स, आर्टिकलशिप, इस सब में इतना टाइम चला जाता है, एक्स्ट्रा के लिए टाइम निकाले कहाँ से? कई लोग कॉलेज को कंप्लायंस की तरह करते हैं कि भाई सीवी पे हमारे रेगुलर कॉलेज दिखेगा तो हमारी शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगी। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एक्चुअली एबल टू टेक इट सीरियसली एंड डिवोट देयर टाइम फॉर पैशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड अदर थिंग्स। सो व्हाट वाज योर सिनेरियो? While my was regular course, I pursued my BCom from Articleship College from Commerce and Economics, Matunga. And the college did give me a platform to carry forward my inclination towards extracurricular activities. I was a part of many discussion cells, literary circles, and one of the pioneer events wherein I started off as a volunteer in junior college and ended up being the chairperson in my final year. And this was not only fun because तुम इतने पढ़ाई में घुसे रहते हो, तुम्हारी आर्टिकलशिप में तुम्हारे लेट वर्किंग्स होते हैं, but it is very important that you balance this side of it. This way you get to interact with people, plus तुम्हारी स्किल्स भी काफी पॉलिश होती है, तुम एक लीडरशिप रोल वहां लेते हो, और वो इंटरव्यूज में काफी हेल्प करता है। जिस तरह से आप आंसर्स करते हो, इंटरव्यूअर कैन कनेक्ट टू इट दैट हाँ अपने आप को वो रोल में रखा हुआ है। और सेकेंडली सारे फेस्ट में पार्ट लेने से, वो चेयरपर्सन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने से फॉक्स भी मिलते हैं, तुम्हें टॉफीज मिलती है कॉलेज की तरफ से, तुम बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर कहलाते हो। तो आई नो थोड़ा ज्यादा पेन है, तुम्हें थोड़े से सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तुम्हारा स्केड्यूल थोड़ा पैक हो जाएगा, बट आई फर्मली बिलीव दैट अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स रखते हो कॉलेज में, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है हर एंगल से, और मजा भी उतना ही आता है। I think वो एक पीरियड है एक्चुअली आफ्टर यू क्लियर योर क्लास 12th एंड बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, जहाँ पे आप एक्चुअली इन चीजों का लुफ्त जो कहते हैं ना वो उठा सकते हो, बिकॉज यू नॉट गोना गेट दिस एक्सपीरियंस दीज डेज, becoming a part of these activities any time in your life, be it in your professional career or any phase. So एक तो वो एस्पेक्ट है, दूसरा जो आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया that when you are sitting for the interviews, generally उनका मेन क्वेश्चन यही होता है कि आप ये सारा वर्क मैनेज कैसे करोगे। एंड व्हेन यू आर एक्चुअली कोटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि यार मैंने कॉलेज मैनेज किया, साथ में मैंने आर्टिकलशिप भी मैनेज कर ली, मैंने स्टडीज भी मैनेज कर ली, जब इतनी मल्टीटास्किंग ऑलरेडी करके आई हैव सिक्योर्ड सच गुड रिजल्ट्स, सो व्हाई कांट आई डू इट राइट नाउ। तो वो जो आप एक बैकिंग देते हो ना अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, आई थिंक दैट वर्क्स इन योर फेवर एंड दैट एक्चुअली वर्कड इन योर फेवर इन दिस केस।
which I would like to highlight, and it has been amazing. So ये तो हो गए HR के क्वेश्चन जहाँ पे उन्होंने आपके बारे में समझा. टेक्निकल क्वेश्चंस किस तरह के पूछे? लाइक सिटी बैंक है तो क्या कुछ एनपीएस इस तरह की बातें हुई वहां पे? करेक्ट. तो जब मुझे HR का कॉल आया था, so I was actually asking him that what are the expectations? Are we required to know the banking norms? क्योंकि अपने जनरल स्टडी लाइफ में या वर्क लाइफ में इतने बैंकिंग नॉर्म्स तो हम कभी भी इतने पता ही नहीं चलता, अपने को पता भी नहीं होता कि क्या एक्चुअली होता है. तो दे वर वेरी वेरी फ्रेंडली एंड दे सेड वी डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो एनी बैंकिंग नॉर्म्स एंड यू प्लीज डू नॉट प्रिपेयर फॉर इट. We are not here to test कि RBI का क्या सर्कुलर है, and these were the words quoted by him. So it was very clear from his side that इतना banking related कुछ भी तुम्हें नहीं आए तो चलेगा. But they tested me on financial reporting and direct tax. Okay. Yeah. तो ये दो चीज उन्होंने मुझे काफी हाईलाइट करी थी. And if I were to quote one simple thing, एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक पार्ट ऑफ इंडेस तू हमारे HR पर्सन को बता दो. So it was not about quoting those jargons or quoting what you learn in exam. How fluently and how easily you explain that to that HR person was kind of expected out of me. तो उस पे काफी फोकस था that मैं एक्सप्लेन कैसे कर रही हूँ चीजों को इन लेमैन टर्म्स. आई थिंक वो ये देखना चाहते हैं कि आप अपने माइंड में कितने सुलझे हुए हो, कितने सॉर्टेड हो, क्योंकि जो सुलझा हुआ सॉर्टेड और बेसिकली जिसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना, वही ये चीज कर सकता है. जिसने चीजों का रट्टा लगाया हुआ है वो ये चीज नहीं कर सकता एनी डे. वो एक उनकी तरफ से टेस्टिंग हो गई. एंड वन थिंग दैट आई फील यहाँ पे हमारे लर्निंग के लिए है कि जब किसी कंपनी से HR का कॉल आता है ना, वो आपसे कुछ पूछते हैं, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है कि आप भी उनसे पूछ सकते हो. So as Charmi did, she asked them what are their expectations from her as a candidate when she is appearing in the interview. एंड आई थिंक दैट्स वेरी नॉर्मल भाई, क्योंकि वो 6-8 दिन जो आपको इंटरव्यू और HR की कॉल के बीच में मिल रहे हैं, आप उन चीजों पे एफर्ट्स करो जो उन पे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है. वो जानना ही नहीं चाहता है आपको बैंकिंग नॉर्म्स पता है कि नहीं पता. आप अपना 8 में से 7 दिन बैंकिंग नॉर्म पढ़ रहे हो, आता उस पे एक भी क्वेश्चन नहीं है, वो पूछ आपसे CA फाइनल के FR का इंडेस रहे हैं. तो आई थिंक वो जो आपका स्ट्रेस है वो भी आपका नहीं बढ़ा जब आपने ऐसी ओपन कम्युनिकेशन रखी, एंड इट एक्चुअली वर्कड इन योर फेवर. ग्रेट. So I think Citi Bank तो काफी अच्छे से हो गया. Did you apply for other corporates also apart from Citi Bank? Yeah, so I applied for PNG, Mondelez. Okay. These were the FMCG companies where I applied for. ठीक है. So यहाँ पे मतलब do you want to share any scope of learning while you applied in this corporate? Because any day when you have got Citi Bank empty offer, there would be no regrets of getting a rejection offer from these companies. बट मुझे ये लगता है कि वहां पे भी आपने इंटरव्यूज दिए तो कुछ लर्निंग मिली, ऐसा लगा कि यार यहाँ पे चलो ये सीखने को मिला भले ये इंटरव्यूज क्लियर नहीं हुए. करेक्ट. हाँ. तो PNG का तो काफी साइंटिफिक प्रोसेस होता है. उनका पहला एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. भी मैं व्यूअर्स से कहूंगी कि बिल्कुल भी लाइटली ना ले, अपना बेस्ट दे so that आपका असेसमेंट हो जाए. देन उनके बहुत ही साइंटिफिक राउंड्स होते हैं. वो नहीं चाहते बिल्कुल भी कि आप उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़िए, आप उनकी कंपनी के बारे में इन डेप्थ जाइए, या आप इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा एनालिसिस कीजिए FMCG की. वो बस आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यूज जानना चाहते हैं. वो आपको बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछेंगे. रियल लाइफ सिचुएशन में आपको उनके कंपनी के प्रॉब्लम सॉर्ट करने होंगे. तो वो काफी प्रिंसिपल बेस्ड होता है कि आप क्या स्टैंड लेते हैं. वो आपको बहुत ट्राई करेंगे कि आप अपना आंसर्स चेंज करें, या आप स्टैंड बदले, या आप कोई गलत रास्ता चुने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. बट ऑल दीज 3 राउंड्स वर लाइक 1.5 राउंड्स फॉर ईच, 1.5 आवर्स फॉर ईच राउंड. तो दैट वाज ह्यूज. एंड तब तक सस्टेन करना, चाहे वो आपसे कितनी भी आपको बार बार बोले दैट आप अपना आंसर्स चेंज कीजिए, आपको डटे रहना है आपके प्रिंसिपल्स पे. और जिस भी चीज की वजह से आप लाइफ में नीचे से ऊपर आए हो उस पे आपको डटे रहना है. सो इट वाज अ वेरी कैंडिड काइंड ऑफ इंटरव्यू. और वो जानना चाहते हैं आप कौन हो, ना कि आपके टेक्निकल्स क्या है, ना ही आपकी एकेडमिक्स क्या रही है. सो चार्मी, मुझे बस एक बात बताओ, कैन देयर बी एनी सिचुएशन और क्वेश्चन दैट यू कैन शेयर सो दैट वी गेट अ पर्सपेक्टिव कि क्या पूछा उन्होंने ऐसा जहां पे वो आपका स्टैंड चेंज करना चाह रहे थे? हाँ. तो ऐसा था कि आप न्यूली डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर है. तो कस्टम्स डिपार्टमेंट बोल रहे हैं दैट यू माइट हैव टू पे सम फीस. आपको ब्राजील में अपना कार्गो अनलोड करवाना है, एंड दैट फीस इज अनकन्वेंशनल.
कहीं लॉ में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा नहीं है कि वो फीस देनी पड़ेगी आपको. That is basically the convenience fees which we Yes. call in India. Okay. Correct. So this is your first fresh opportunity. आपको अपने आप को प्रूव करना है, और आपका अगर कार्गो अनलोड नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे? So they put me in real pressure that ये तो 10 days में go live है, आपके पास आपके products नहीं आए हैं, ये वो. But I was very clear that first तो मैं law देखूंगी black and white whether this is required or not. हाँ. सेकेंडली, अगर मैं फ्रेशर हूँ तो मैं वहाँ के मर्चेंट से बात करूंगी जो CNF एजेंट्स होते हैं कि आप इन चीजों को कैसे टैकल कर लेते हो. और थर्डली, आई वुड लाइक टू हैव एन ओपन कम्युनिकेशन वेरिन आई वुड लाइक टू विन ऑन मेरिट्स, एंड मैं अपने प्रिंसिपल्स और अपनी कंपनी की ब्रांड एकदम ध्यान में रखूंगी. बिकॉज, और मैंने ये चीज भी कोट करी थी दैट दिस इज अ वेरी शॉर्टकट मेथड. एक बार तो मैं दे दूंगी, बट दूसरी बार भी तो मेरा कार्गो अनलोड होना है. So I will not be doing that. So why not do it right the first very time? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. So यहाँ पे आई थिंक बहुत ही बढ़िया जो मुझे लर्निंग दिख रही है, ये तो आपने मतलब एक पूरा प्रोसेस बता दिया कि जिसमें आप अपना डिसीजन दोगे. पर यहाँ पे एक बहुत मजेदार जो चीज छुपी हुई है ना, वो है SCMP का कॉन्सेप्ट. जो हम बात करते हैं ना, फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल फैक्टर, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर. तो वो जो वहां पे बात बोलते हैं कि भाई आप शॉर्ट टर्म में अगर डिसीजन ले रहे हो तो आप प्रॉफिट को ध्यान में रख के लेते हो कि आपका प्रॉफिट क्या है. बट अगर वैसे आप अपना प्रॉफिट बढ़ाते हो और एट द एंड ऑफ द डे आपका ब्रांड खराब हो रहा है, तो दैट इज अफेक्टिंग यू इन अ लॉन्ग टर्म वे, एंड वो ज्यादा नुकसान करेगा कंपैरेटिवली. उसको मुझे जो जितना दिख रहा है दैट यू अप्लाइड प्रैक्टिकली इन दैट सिचुएशन एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड यू इन दैट मैनर. तो मुझे एक्चुअली लगता है कि यार जो भी आप पढ़ रहे हो ना CA फाइनल लेवल पे, वो प्रैक्टिकल है, बस आपको अपना नजरिया बदलना है, एंड दैट विल हेल्प यू एट द एंड ऑफ द डे. सो ग्रेट चार्मी, आई थिंक काफी हमने अच्छी मजेदार बातें कर ली. आई थिंक एक बार बस आप मुझे थोड़ा सा एक इफ यू कुड गिव अ हिंट अबाउट कि किस तरह से है ये रोल जो आपका सिटी बैंक में है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग रोल, सो दैट यू गेट अ पर्सपेक्टिव दैट वेयर यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर. So I'll play a role in the commercial banking division as a credit analyst. मेरे 6 months की 4 stints होगी जहां मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगी. After 2 years, my experiences with all my 4 stints, my performance and the evaluation criteria set by the bank, उसके बाद मेरी एक पोस्टिंग होगी किसी एक प्रॉपर वाले डिपार्टमेंट में. That will be a little permanent than those things. Okay. And I'll be based out of their headquarters in Mumbai, that is PKC area. So this is a very niche kind of a role wherein you get to, experience 4 different stints for a span of 2 years. Great. And what I understand is I'll be working closely with the relationship manager, and that is how the entire process is going to be. I think it's amazing to get such opportunity in such difficult times, and definitely you deserve this because of all the effort that you have put in till now. And as you say that there are 2 aspects, one is academic and professional, other is extracurricular. When you perform well in all these aspects, you come out as a better individual, and of course you get better opportunities. Thanks a lot, Charmi, for sharing your learnings again with us and shoring us with your experience and everything. And I think it was a great platform, and everything went out very well. Thanks a lot for sharing your views. Thank you so much, Shubham, for this opportunity. And in case of any doubts, can always buzz me or Shubham anytime, and happy to help. So guys, I think आपको बड़ा मजा आया होगा इस पूरी वीडियो में. A lot of learning was there. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, so that they get also inspired कि they also need to work hard, get a rank in CA final. Work hard to get the best of the experience in their articleship, and ultimately क्या पता इस एपिसोड या इस सीरीज का जब अगला सीजन आए तो आप चार्मी की जगह वहां बैठे हो और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो. Till then, stay connected, stay subscribed, and stay amazing as you all are. Thanks a lot for watching. Bye bye. Bye.